Continue our series MCQ for UGC NET, JRF and SLATE examination for commerce tip. First MCQ statement है यहाँ पर, high moral always lead to high productivity. Second, high moral need not necessarily lead to high. तो यहाँ पर देखो तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, हाई मोरल ऑलवेज लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी. हमें ज्यादा मोरल होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी. इट इज अ रॉन्ग आंसर. हाई मोरल नीड नॉट नेसेसरी लीड टू हाई. इट इज अ राइट आंसर. सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू. The most important reason for the investor to prefer a bank deposit in. Option number A, credit worthiness of the bank. Option number B, bank does not invest in security. Option number C, bank offer a guarantee. And option number D, all of above. So हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इन्वेस्टर टू प्रिफर बैंक. क्यों प्रिफर कर रहा है बैंक को? ये जो तीन ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है. तीन ऑप्शन. सो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट एमसीक्यू. The factor endorsement theory of international trade was proposed by. फैक्टर एंडोर्समेंट थियोरी किसने दी? ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बहुत बार यूनिवर्सिटी नेट की एग्जामिनेशन में आया है. आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी, बर्टाइल ओहलिन. बर्टाइल ओहलिन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, ब्रिटिश अगेन एक स्टेटमेंट है, ब्रिटिश एस्टेब्लिश एंड डेवलपमेंट इंडियन रेलवे. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियन रेलवे की एस्टेब्लिश और डेवलपमेंट किया है. सही बात है कि सबसे पहले जो रेल इंडिया में स्टार्ट हुई थी रेलवे, वो ब्रिटिश ने ही की थी. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है. सेकंड, द ब्रिटिश आर keenly interested in India's economic development. Definitely right. Britishers never be interested in economy of development. वो डेवलपमेंट में नहीं सोचते थे, वो सिर्फ उतना ही सोचते थे कि किस तरीके से ही इंडिया से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें. तो ऑप्शन नंबर जो असर्टेन है, इट इज अ राइट एंड रीजन इज द टोटली रॉन्ग. So option number C is the our answer. A is a true and R is a false. Next MCQ. Which of the following is the best example of agreement between oligopolists? Best example क्या है? GATT, OPEC, WTO, UNITO. OPEC जो है, it is the best example for agreement between oligopolists. OPEC का full form हमें पता होना चाहिए, Organization of the Petroleum Exporting. Next MCQ. The public enterprise is defined as. A public enterprise क्या है? And option 4, the option number first, an organization run by joint effort of central and state government. Option number B, an organization which create to the need relating to public utility. Option number C, an organization in which capital is invested by public. Option number D, an organization owned and managed by public authority for defined set of public purpose. So option number D is our correct answer. Public enterprise is defined as an organization owned and managed by public authority for a defined set of public purpose. Next MCQ. Consider the following. Consider करना है. नीचे दिया है, the arrange this ratio in sequence to reflect the liquidity in decreasing order. Decreasing order में हमें define करना है. तो सबसे पहले आएगा करंट रेशियो, देन क्विक रेशियो, देन सुपर क्विक रेशियो, बेसिक, डिफेक्टिव एंड इंटरवल रेशियो. दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस. सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 3 and 1. नेक्स्ट एमसीक्यू. कंसिडर द फॉलोइंग टर्म. डिबेंचर, prepaid rent, interest accrued and bank overdraft. Which one of them are current liability? Current liability कौन सी है? Debenture is not current liability. Prepaid rent is not current liability. Interest accrued, which is again not current liability.
So only bank overdraft is the current liability. So our answer is option number B. Next, which of the following referred to perfect competition? अब perfect competition क्या है? Perfect competition means there is no any kind of the restriction to the buyer and seller also enter in the market. कोई restriction नहीं है. जब भी buyer को आना है buyer freely आ सकता है, seller को आना है seller freely आ सकता है. तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए. ऑप्शन नंबर ए, देर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन बायर्स एंड सेलर. अब बायर और सेलर में रिस्ट्रिक्शन है. जब रिस्ट्रिक्शन है इट मीन्स ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है. तो यहाँ देखो, आप फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन हटा दो, ए में, सी में और डी में. सो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑटोमेटिकली हमारा सही आंसर बन जाता है. तो बी और सी ऑप्शन दिया है. देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, there are no restriction on factor of production. So definitely, so option number B is our correct answer. Option B and second and third is our correct answer. Next, the Carl Pearson coefficient of correlation between two variable is. अब कार्ल पियर्सन ने जो coefficient correlation का इक्वेशन दिया था, तो वो सबसे पहले हमें थोड़ा इक्वेशन पता होना चाहिए. इक्वेशन पता होगा तो डेफिनेटली हम उसका आंसर दे सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए, द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. ऑप्शन नंबर बी, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर regression coefficient. Option number C, the covariance between the variable. Option number D, none of above. अब जो कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट का इक्वेशन दिया था वो हमें पता होना चाहिए. स्क्वायर रूट में था प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोरिलेशन. तो स्क्वायर रूट वाला जो होगा वो आंसर होगा. ऑप्शन नंबर बी इज द आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्विंग द प्लानिंग. अब प्लानिंग का सबसे पहले करेक्ट स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले जब हम प्लानिंग करते हैं तो फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि क्यों हम ये प्लान कर रहे हैं. सेकंड इज द डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्स. थर्ड इज द इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स. उसके बाद फोर्थ स्टेप इज सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एंड लास्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है. ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद हम अल्टरनेटिव डिफाइन करेंगे. इफ वी आर चूज द अल्टरनेटिव देन आफ्टर वी आल्सो इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव. After evaluation of alternative, we select the best course of the action and last establishing the sequence of the activity. ये जो sequence है, it is the proper sequence of the planning. तो सबसे पहले रहेगा, the first step of the planning is establishment of the objective. Second step is the determining alternative course. After determining, we also evaluate the alternative course. And after action, we select the best course of the action, कौन सा best step. And then after, establish the sequence of the activity. This is the proper sequence, proper steps involving in the planning. Sequence of steps involving in the planning. So here our answer is option number D is the correct answer. Next, all the activity involved in selling goods or service directly to the final customer for personal non-business use are done by. अब सारी एक्टिविटी जो है गुड्स और सर्विसेज की कस्टमर तक हम ले जाते हैं और जनरली कौन फुलफिल करता है ये चेन को? तो रिटेलर्स. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द आवर करेक्ट आंसर. फिर से हम एक बार कर लेते हैं रिपीट. All the activity involved in selling goods or service directly to the final customer for personal non-business use are done by retailers. Retailer is the right answer here. Next, the manage a business well is to be manage its future
and to manage the future is to manage the information is termed as. Definitely the answer is here marketing इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस को वही सबसे अच्छे मैनेज करता है और फ्यूचर को भी बढ़ाता है। आपकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जितनी स्ट्रांग होगी डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है उतना ग्रो करेगा। सो हियर आंसर इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट, the concept of present value is based on the। अब प्रेजेंट वैल्यू किस पर बेस्ड है? हम सबको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग पर बेस्ड है। तो यहाँ ऑप्शन हमें दिए प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग, ए बी और नन ऑफ अबोव। बट प्रेजेंट वैल्यू, द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द discounting and principle of discounting is the correct answer. Next, on which of the following at the initial stage the Indian IT company relying the more for getting good IT professional? अब IT कंपनी जनरली कहाँ से ले रही है बेस्ट को? तो सबसे पहले यहाँ में आंसर ऑप्शन दिए हैं जॉब पोर्टल्स। अलग अलग जो जॉब पोर्टल है वहां से वो प्रोफेशनल को हायर करती हैं। प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑल ऑफ अबव। मोस्ट ऑफ द आईटीज जो कंपनी है वो कैंपस प्लेसमेंट थ्रू ही अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा ले रही है। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Empirical Bank was established on January 27, 1921 on the advice of। अब Empirical Bank जब बनी थी 1921 में, तो ये किसकी एडवाइस से बनाई गई थी? द पर्सन नेम इज J.M. केन्स। J.M. केन्स था, वो अंग्रेज था, उन्होंने एडवाइस दी थी कमिटी को कि इम्पेरिकल बैंक जो है इंडिया में एस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो 1921 में इम्पेरिकल बैंक वाज एस्टेब्लिश ऑन द एडवाइस ऑफ J.M. केन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, which among the following is not true with regards to merchant bank? अब मर्चेंट बैंक के लिए ये कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। डेफिनेटली मर्चेंट बैंक ऑल्सो एक्सेप्ट दी डिपॉजिट। इट कैन एडवांस दी लोन। डेफिनेटली मर्चेंट बैंक ऑल्सो डू दिस। इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटी। डेफिनेटली बैंक ऑल्सो अदर एक्टिविटीज करती है। उसके बाद इट कैन बी मैनेज अ पब्लिक इश्यू। मर्चेंट बैंक नेवर बी मैनेज द पब्लिक इश्यू। सेबी ऑल्सो मैनेज द पब्लिक इश्यू। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट। ऑप्शन जो 4 दिया इट इज द रॉन्ग। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 देने वाला ओनली एक ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड, आज की सीरीज में इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।